Hello students, welcome back to my channel. In this particular lecture, we'll cover some important problems, important numericals and important formulas. They are being asked in different competitive exam from weed science and management, right? So let's talk about one by one. आप अच्छे से देखिए इसको, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है and students are generally cannot attend this type of question because they always think that numericals are tough task to solve in different competitive exam. That's not the truth. If you once understood the concept, the formula, then you can easily get out of it and you can easily solve this type of numericals in your competitive exam. So watch it till the end, and if you have any doubt at any moment, you can ask me in the comment section or you can join our Telegram group and ask there also. So let's talk about different numericals from weed science. ओके, weed science से कुछ important numericals की बात करते हैं हम. So पहला जो है हमारा that is how to calculate herbicide quantity. ओके, herbicide का क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टू अप्लाई इन द फील्ड. सो कभी भी हमारा कोई रिकमेंडेशन जैसे है, सपोज पेंडिमिथालिन का हमारा रिकमेंडेशन है 1 kg पर हेक्टर, 1 kg AI पर हेक्टर. सपोज पेंडिमिथालिन का सपोज रिकमेंडेशन कोई भी क्रॉप के लिए, सपोज पेंडिमिथालिन दैट इज दिस इज अ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड. सो सपोज हमारा रिकमेंडेशन है 1 kg AI per hectare. Okay, so this is the recommendation for pendimethalin, suppose. But pendimethalin is not marketed as such. Pendimethalin is any herbicide that is marketed with a trade formulation. Formulation यानी उसमें chemical रहता है, that is the chemical actually control the weed. That chemical is there. Then there are certain carrier, there are certain adjuvants is also there, right? To make it more effective, to increase its shelf life, and to increase its efficiency, and to reduce the phytotoxicity or maybe exposure of the labor towards that herbicide. There are certain addition in that, right? So that formulation is made by a company. So suppose Pendistop. Okay, suppose this is the trade name of Pendistop. Suppose this is a trade name of by any company. This formulation is there, and इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें कितना परसेंटेज पेंडिमिथालिन है. सपोज इसमें 50% ऑफ जो ट्रेड प्रोडक्ट है मार्केट में जो अवेलेबल होता है उसके पैकेट के ऊपर वो लिखा रहेगा कि पेंडिमिथालिन 50% WP या फिर 50% SC या SL कुछ लिखा रहेगा. दीज आर फॉर्मुलेशन. ओके, WP, SC एंड SL दीज आर फॉर्मुलेशन. ओके, कौन सी फॉर्म में है, राइट? सो 50% SL SC WP यानी जो पेंडिस्टॉप है उसमें 50% दिस पेंडिमिथालिन है एंड अनदर 50% इज सपोज कैरियर, एडजुवेंट एंड मिक्सचर ऑफ दिस, राइट? सो यहाँ पे हम पेंडिस्टॉप अप्लाई करेंगे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट टू अप्लाई आवर पेंडिस्टॉप बिकॉज वी कैनॉट फाइंड पेंडिमिथालिन डायरेक्टली इन द मार्केट. वी कैन फाइंड इट्स ट्रेड प्रोडक्ट, राइट? सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस पेंडिस्टॉप, हाउ मच वी हैव टू अप्लाई. सो दैट इज द फॉर्मूला इज Q, मतलब quantity of this trade product we have to apply, that is dose by AI active ingredient into 100. This is the formula, remember. Quantity यानी कितना amount of trade product हमको चाहिए अप्लाई करने के लिए उस फील्ड में. Dose यानी this is the dose written in any textbook or any website, that is pendimethalin कितना डोज उसका रहेगा. 1 kg सपोज यहाँ पे 1 kg AI पर हेक्टर, डिफरेंट केमिकल के लिए डिफरेंट रहेगा. सो यहाँ पे 1 kg या फिर 1000 ग्राम रहेगा. देन AI यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट. सो पेंडिस्टॉप में कितना AI पेंडिमिथालिन है 50%. सो यहाँ पे 50 रहेगा सपोज. सो यहाँ पे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100. सो हमको कितना चाहिए 50 to 2000 ग्राम ऑफ पेंडिस्टॉप चाहिए, यानी 2 kg of pendistop we need to apply in our field for 1 hectare area, right? So in this way we can calculate the herbicide quantity. Next thing, weed control efficiency.
weed कंट्रोल एफिशिएंसी क्या है, कोई भी हम weed कंट्रोल मेजर ले रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, राइट, दैट इज weed कंट्रोल एफिशिएंसी. सो इसका फॉर्मूला क्या है, weed कंट्रोल एफिशिएंसी इज इक्वल टू weed डेंसिटी इन कंट्रोल प्लॉट. कंट्रोल प्लॉट यानी जिसमें हम कोई भी कंट्रोल मेजर नहीं ले रहे हैं, दैट इज weed डेंसिटी इन कंट्रोल प्लॉट माइनस weed डेंसिटी इन ट्रीटेड प्लॉट. मतलब हमारा जो भी हम weed कंट्रोल मेजर ले रहे हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ weed इन दैट प्लॉट डिवाइडेड बाय weed डेंसिटी इन कंट्रोल प्लॉट इनटू 100. So this is the formula for calculating weed control efficiency, right? So in this way you can calculate weed control efficiency. Weed density in control plot यानी जहाँ पे हम कोई भी कंट्रोल मेजर नहीं ले रहे हैं, माइनस weed density in treated plot यानी जहाँ पे हम कंट्रोल मेजर ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय weed density in control plot into 100. That is weed control efficiency. Then weed index. Weed index tells us what is the yield advantage in our treatment. Okay, so weed index यानी yield in weed free plot minus yield in treated plot divided by yield in weed free plot into 100. weed index निकालने के लिए हमको एक weed free plot चाहिए, मतलब हमको वहाँ पे मैनुअली weeding करके सारे weeds को निकालने हैं, राइट. तो वहाँ पे yield कितना आ रहा है क्रॉप का, माइनस yield ऑन ट्रीटेड प्लॉट यानी जहाँ पे हम हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिफरेंट मैकेनिकल वीडिंग इम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे yield कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय yield इन weed फ्री प्लॉट ट्रीटमेंट इनटू 100. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट weed इंडेक्स. ओके, weed कंट्रोल एफिशिएंसी हमको पता चल गया, weed इंडेक्स का भी फॉर्मूला पता चल गया. देन weed स्मूदरिंग एफिशिएंसी. ओके, weed स्मूदरिंग एफिशिएंसी क्या है, जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं एंड जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, राइट. जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं एंड इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मोनोक्रॉपिंग में क्या है, नॉर्मल जो प्लांटिंग जो रो है उसका स्पेसिंग के हिसाब से हम प्लांटिंग करते हैं. इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, नॉर्मल प्लांटिंग के साथ साथ अंदर एक एक रो हम इंटरक्रॉप भी प्लांट करते हैं, राइट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, यू कैन सी माई प्रीवियस लेक्चर. सो इंटरक्रॉपिंग में हम एक्स्ट्रा एक क्रॉप लेते हैं, राइट. सो ये एक्स्ट्रा क्रॉप क्या करता है, इसका जो फॉलिएज है ये स्प्रेड होके रहेगा. तो स्प्रेड होने के कारण इसका जो कंपटीशन है वीड के साथ वो बढ़ जाएगा एंड देयर वीड पॉपुलेशन एंड वीड डेंसिटी विल सप्रेस, गो डाउन. इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, वीड के ऊपर एक स्मूदरिंग इफेक्ट आएगा. स्मूदरिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, स्मूदरिंग इफेक्ट. यानी जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक सिंगल जो रो अरेंजमेंट में अगर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो वीड ग्रो होने के लिए बहुत सारा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है. लेकिन जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, वहाँ पे इंटरक्रॉप में हम दो मेन क्रॉप के बीच में एक इंटरक्रॉप भी प्लेस करते हैं. तो वो इंटरक्रॉप क्या करता है, उसका जो फॉलिएज है दैट डू नॉट परमिट द वीड्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो, राइट. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज वीड स्मूदरिंग इफेक्ट. सो इसका जो एफिशिएंसी है, स्मूदरिंग एफिशिएंसी, वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी कितना है इंटरक्रॉप का, उसको कैलकुलेट करने के लिए वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम weed dry matter in monocrop, okay, minus weed dry matter in intercrop divided by weed dry matter in monocrop. weed dry matter कहाँ पे ज़्यादा होगा, मोनोक्रॉपिंग में, क्योंकि बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है. weed dry matter कहाँ पे कम होगा, इंटरक्रॉपिंग में, क्योंकि वहाँ पे स्मूदरिंग इफेक्ट है, स्मूदर हो जा रहा है, weed सप्रेस हो जा रहा है, divided by weed dry matter in monocrop into 100. So in this way we can calculate how efficient intercropping is in terms of weed management, in terms of weed control. So these are some basic formulas which are being asked in different competitive exam, and you can go through them one by one, and at any point if you face any doubt you can ask me in the comment section or you can ask me in the Telegram group also. If you have not joined our Telegram group or you have not subscribed to our YouTube channel yet, then just subscribe, hit that subscribe button, and so that you will never miss any lecture. Whenever I post or upload a new lecture, you will never miss. And you just join our Telegram group to know about updates of lectures and to get some study materials also. So see you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.